Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about the demand. As we know that it is one of the fundamental and most important topic in economics. Uh, because we know that working a free market economic system जो हमारा capitalist system है is based upon the prices of goods and services, and how these prices of goods and services are determined. These prices of goods and services are determined by the forces of demand and supply in free market economic system. So if we want to know how policy or event can affect the economic position of a country, we first of all we have to know how it will affect the demand and supply position of goods and services in a country. ठीक है? Demand in economics means that a quantity of goods and services that consumer is willing and able to buy at given prices in given period of time. ठीक है? अब यहाँ पे जो दो बातें हैं हमारे पास, every desire is not our demand. Every desire doesn't mean that is our demand. For a common man, need, desire, want, all are same things. But we can differentiate between these terms in economics. Not every desire is our demand. For example, if we have desire to get something, but we don't have purchasing power to buy that product, then it may be our desire, but it will never be called our demand. Okay? There are two types of demand here which can differentiate it further. Notional demand. Notional demand means that we have just desire to get something, but we don't have purchasing power for that product. For example, if you want to have a car, but you don't have money to buy it, then it is your notional demand. Demand in economics need to be an effective. Demand का effective होना जरूरी है. What does by effective demand mean? That if we have desire to get something, we must have purchasing power for that product. For you can see here, if we have if we have desire to get something, we must have purchasing power for that product. ठीक है? Now we move to our law of demand. What does law of demand tells us? Law of demand shows there is an inverse relationship between the prices and quantity demand. Price और quantity demand के दरमियान क्या ताल्लुक है? Inverse relationship है. It means that if the prices of goods and services increases, their quantity demanded will be decreases. अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उससे उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होती है तो उससे उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ठीक है? We can also plot it on diagram. You can see here whenever the price of product increases from P0 to P1. जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होके P0 से P1 पे चली गई तो क्या हुई? इसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होके Q1 से Q0 पे आ गई. ठीक है? On the other hand, if price of product is initially at P1 and it will decreases from P1 to P0, then and we can say that if initial quantity was Q0 and after declining in prices it will increases from Q0 to Q1. ठीक है? That we can show by graph. ठीक है? Here we have assumptions, very important assumption of law of demand, that is ceteris paribus. What does ceteris paribus mean? That all, by assuming all else constant. As we know that there are many other factors that can affect the demand for product. For example, population test. There are so many other factors that can influence the demand for a product. But here in law of demand, we can see only the relationship, we can discuss only the relationship between the price and quantity demand for a product. Okay? Now, why does demand curve slopes downward? Here, why demand curve slopes downward? क्यों demand curve slope downward करता है? इस तरह downward slope क्यों करता है? ये upward slope क्यों नहीं करता? There are three basic reasons behind this. ठीक है? There are three basic reasons why does this demand curve slopes downward. Downward क्यों होगा? जब price decrease होगी, quantity demand increase होगी, तो we move along with the same demand curve downward. अब इसके पीछे हमारे पास तीन reasons हैं कि क्यों price के गिरने से हम किसी product की demand को बढ़ा देते हैं. ठीक है? First one is income effect. Income effect. By income effect mean that अगर किसी product की price decrease होती है, तो हमने यहाँ पे assumption क्या लगाई है? Ceteris paribus.
ceteris paribus का क्या मतलब है? all else remains constant, बाकी जूं का तू रहेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मतलब आपकी इनकम तो कांस्टेंट है। अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं तो मीन दैट योर परचेजिंग पावर फॉर दैट दोज प्रोडक्ट्स विल इंक्रीजेस, आपकी जो परचेजिंग पावर है उन प्रोडक्ट्स के लिए इंक्रीज कर जाएगी। दैट्स व्हाई यू विल इंक्रीज योर डिमांड फ्रॉम Q0 टू Q1, आप इसलिए अपनी डिमांड को इंक्रीज करते हैं। दैट्स व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, दैट इज द फर्स्ट रीजन। The second reason is that whenever a price of the product decreases, अगर किसी product, that is the substitution effect we are going to discuss. Whenever the price of product decreases, अगर किसी product की price decrease होती है, like P1 से decrease होके P0 पे आ गई, ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ेगी because of substitution effect as well। जैसे पहले हम लोगों ने income effect डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं substitution effect कि substitution effect की वजह से कैसे किसी product की डिमांड जो है वो increase करती है उसकी price decrease होने की वजह से। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी की प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पेप्सी की प्राइस कम हो गई लेकिन कोक की प्राइस क्या है? सेम है, बिकॉज हमने यहाँ पे assumption क्या लगाई है? ceteris paribus, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या हुई है? डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम assume करते हैं कि हम पेप्सी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हुई है तो क्या होगा? क्योंकि कोक की प्राइस तो चेंज नहीं हुई, बहुत सारे कोक के कस्टमर्स भी डाइवर्ट कर जाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कोक को पेप्सी के लिए, लोग पेप्सी खरीदना शुरू कर देंगे जो लोग पहले कोक खरीदते थे। तो इस तरह से क्या हो जाएगी? पेप्सी की ओवरऑल डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स डिमांड एक्सटेंडेड एंड वी मूव हियर डाउनवर्ड अलोंग विद द डिमांड कर्व। तो ठीक है, दैट इज द सेकंड रीजन। अब जो थर्ड रीजन है इसकी, why does demand curve slopes downward? देखिए, as the price of product decreases, जैसे कोई प्रोडक्ट सस्ती होती जाती है तो क्या होते हैं? न्यू बायर विल कम इनटू द मार्केट, जो कि पहले लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस प्रोडक्ट को, अब वो भी मार्केट में आएंगे और वो भी उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, इसलिए उसकी डिमांड क्या होगी? एक्सटेंड होगी। देखें, मोबाइल शुरू में बहुत महंगे थे, नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड देम, बट जैसे जैसे उनकी प्राइसेस डिक्रीज होती गई तो उनकी डिमांड एक्सटेंड होती गई, बढ़ती गई। क्यों डिमांड बढ़ती गई? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की परचेजिंग पावर में आ गया, ठीक है। नाउ वी डिस्कस एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व जो होती है, इट अकर्स ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है? प्राइस चेंज की वजह से होती है। प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, नॉट एनी अदर प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइस चेंज की वजह से एक्सटेंशन होती है डिमांड कर्व में या कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक्सटेंशन का क्या मतलब है? फैलना, और कंट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना। कब डिमांड फैलती है और कब डिमांड सिकुड़ती है, ठीक है। एज वी नो दैट इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, अगर उस किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसकी डिमांड सिकुड़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड contraction in demand curve। तो we move along with the same demand curve to upward, हम उसी डिमांड कर्व पे रहते हुए अपवर्ड मूव कर जाएंगे। ये देखें, अगर हम कहते हैं इनिशियल प्राइस थी P1, जो ये मैंने ब्लू लाइन से, जो डार्क लाइन है इससे शो किया हुआ है P1 Q1 को, तो देखिए इनिशियली प्राइस थी P1 पे, अब क्या हुई है? P1 से प्राइस इंक्रीज होके चली गई है P2 पे। P2 पे चूंकि प्राइस चली गई है तो इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब क्वांटिटी डिमांड पहले Q1 पे थी, वो वहां से डिक्रीज होके कहां पे आ गई? Q0 पे आ गई, और हम इस कर्व पे कहां मूव कर गए? ऊपर मूव कर गए, यहां पे। और ये क्या कहलाता है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। अब इसी तरह से देखिए, अब किसी प्रोडक्ट की प्राइस जब डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगी? डिमांड क्या होगी? फैलेगी। जब किसी कोई प्रोडक्ट सस्ती होगी तो डिमांड उसकी एक्सटेंड होगी। वी मूव अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व, हम उसी कर्व पे क्या हो जाएंगे? डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। देखें, अब प्राइस पहले इनिशियल प्राइस अगर कहते हैं हम, शुरू में प्राइस किधर थी? P1 पे थी, यहां से प्राइस डिक्रीज होके कहां पे आ गई? P0 पे आ गई। अब P0 पे प्राइस आने से फर्ज करें जो हमारी पहले P1 प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे थे? Q1 क्वांटिटी खरीद रहे थे। अब प्राइस चूंकि कम हो चुकी है तो हमारी डिमांड भी उसके लिए क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। तो हमारी डिमांड एक्सटेंड होके Q1 से Q2 पे चली गई। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। ये क्या कहलाएगी? एक्सटेंशन कहलाएगी। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जस्ट होती है बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज। प्राइस के अलावा अगर कोई और फैक्टर चेंज होगा तो डिमांड कर्व में एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, बट डिमांड कर्व अपनी जगह को क्या कर देगा? तब्दील कर देगा। डिमांड कर्व चेंज इट्स पोजीशन व्हिच वी कॉल शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हियर वी कैन सी दैट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि कैसे डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। देखिए, इनिशियली आप देखें, इफ एनी अदर फैक्टर, प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर क्या होता है?
चेंज होता है दैट विल इफेक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। देखिए देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। आपकी इनकम चेंज होती है तो तब भी आप डिमांड को चेंज करते हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड को चेंज करते हैं। तो इनकम मेरी ज्यादा हो जाएगी तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदूंगा, इनकम मेरी कम हो जाएगी तो मैं कम प्रोडक्ट्स खरीदूंगा। इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे प्रोडक्ट्स, तो पॉपुलेशन कम होगी तो लोग कम खरीदेंगे प्रोडक्ट्स। तो डिमांड को बहुत सारे और भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं प्राइस के अलावा। अब प्राइस के अलावा कोई भी और फैक्टर तब्दील होगा तो क्या होगा, कोई भी और फैक्टर चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व विल शिफ्ट आइदर टू राइटवर्ड, या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर किसी रीजन की वजह से डिमांड बढ़ती है, ठीक है, अब आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई, इनकम बढ़ गई किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। अगर आपकी इनकम या कोई पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, फैशन, टेस्ट, कोई भी चीज कम होती है तो इसकी वजह से डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। उसी गिवन प्राइस पे अब हम लोग उस प्रोडक्ट की कम क्वांटिटी को खरीदेंगे। देखें हियर वी कैन सी दैट इनिशियली वी आर हियर, देखिए ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है जिसको हमने D1 का नाम दिया है। P1 प्राइस थी और क्या है D1, हम लोग क्वांटिटी खरीद रहे थे Q1 हम इस D1 कर्व पे खरीद रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने प्राइस को तो चेंज नहीं करना, प्राइस तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट इन डिमांड का बात करें तो शिफ्ट मैंने जैसा कि आपको बताया देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स so that can affect the demand for product. If either of these changes, that will shift the demand curve either to the rightward or to the leftward, ठीक है। अब देखें क्या हुआ, आप कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी एट द सेम प्राइस, क्या हो जाएगी, हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, हमारी डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी। अगर इनकम चेंज होती है या पॉपुलेशन चेंज होती है, बढ़ जाती है, तो उसी प्राइस पे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ, Q1 से डिमांड बढ़ गई, कितने पे चली गई, Q2 पे चली गई, Q2 पे चली गई। उसी प्राइस पे रहते हुए हम लोग अब ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो अब हम इस पॉइंट पे आ गए, नए डिमांड कर्व पे आ गए जो कि D3 है। डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसी तरह से अब मैं कहता हूं इनकम मेरी डिक्रीज हो जाए, इनकम डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इसी से मैं पहले Q1 खरीद रहा था तो अब कितनी खरीदूंगा, Q0 खरीदूंगा। मैं अब नीचे वाले डिमांड कर्व पे आ गया, मैं यहाँ पे मूव कर जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा। तो क्या हो गया, शिफ्ट डाउनवर्ड हो गया डिमांड कर्व, ठीक है। अब कौन कौन से अनासिर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं पैसिफिक से। पैसिफिक मैंने इसको एक टर्म की तौर पे आप इसको, इन फैक्टर्स को याद कर सकते हैं, बहुत इजी वे में। पैसिफिक देखें, P फॉर पॉपुलेशन, A फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, S फॉर सब्स्टिट्यूट, I फॉर इनकम, F फॉर फैशन, I फॉर इंटरेस्ट एंड C फॉर कॉम्प्लीमेंट प्राइस। इफ आइदर ऑफ दीज चेंजेस, इसमें से किसी भी फैक्टर में चेंजेस आती हैं तो उससे डिमांड पे असर पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी इनकम और पॉपुलेशन वाला डिस्कस किया, इसी तरह हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूट। देखिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि विच गुड कैन यू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अदर, दूसरी की जगह जो यूज की जा सकती है, जैसे कि पेप्सी और कोक। तो क्या हुआ, अब इनिशियली यहाँ पे थे हम लोग Q1 खरीद रहे थे P1 प्राइस पे, ठीक है। ये कौन सी डायग्राम है, हम कहते हैं ये पेप्सी की डायग्राम है। अब क्या हुई, कोक की प्राइसेस क्या हो गई, बढ़ गई, कोक महंगी हो गई, पेप्सी की प्राइसेस चेंज नहीं हुई, तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। Q1 से बढ़ के कितने पे चली जाएगी, Q2 पे चली जाएगी। इसी तरह से अगर कोक की प्राइस कम हो गई तो पेप्सी की प्राइस चूंकि चेंज नहीं हुई P1 पे ये, तो लोग इसको कम खरीदेंगे, तो हम लोग Q1 से मूव करके भी किधर आ जाएंगे, Q0 पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह फैशन, अगर कोई चीज फैशन में आ जाती है तो गिवन प्राइसेस पे हम उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, हम लोग जो अपवर्ड डिमांड कर्व है जो उसके ऊपर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है, D3 पे आ जाएंगे। इसी तरह कोई चीज फैशन से आउट हो जाती है तो उसी प्राइस पे लोग उसकी डिमांड को कम कर देते हैं, हमारी Q1 से कम होकर Q0 पे आ गई, ठीक है। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट से भी हमारी डिमांड कम या ज्यादा होती है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या होगा, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो पीपल विल सेव मोर एंड बारो लेस, लोग कम सेव ज्यादा करेंगे और जो है बारोइंग वो कम करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो इकोनॉमी है उसमें जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी, उससे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज कर जाएगी, तो डिमांड का नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह इसके वाइस वर्सा आप ले सकते हैं, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर जॉइंटली यूज्ड गुड्स, जो कि द गुड्स विच कैन बी यूज्ड always in couples, without their couple they have zero value, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती without their couples, like pair of shoes, car and petrol, bat and ball। लेकिन बगैर पेट्रोल के कार का कोई काम नहीं है। एक जूता है आपके पास जितना भी अच्छा है,
उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास उसका पेयर मौजूद नहीं है, दूसरा पेयर मौजूद नहीं है। इसी तरह बैट है, बॉल नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा अब क्या हुआ, बैट की प्राइस चेंज होगी तो उसकी वजह से बॉल की क्वांटिटी डिमांड पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर बैट महंगा हो जाता है तो क्या होगा, लोग बैट कम खरीदेंगे ऑब्वियसली, फिर वो बॉल को भी कम खरीदेंगे, डिमांड का नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेट से बैट सस्ता हो गया तो लोग बॉल की भी डिमांड, बैट ज़्यादा खरीदेंगे तो बॉल भी ज़्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड फॉर द बैट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। होपफुली ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान अल्फाज में। हियर आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द थिंग्स that are in this topic, so hopefully you can understand it now better way. ठीक है, thank you. If you have any query, any question, you can ask me. Thanks.